Now this is quite simple exercise. We have to find the ordered pair. First question. If x minus 1 y plus 4 is equal to 1, 2. Question is find the value of x and y. Now these are ordered pair क्योंकि पहले से equal लिखा है. So what do you mean by ordered pair? Compare the first term to the first term. यानी x minus 1 is 1. So what is x is equal to 2. Same way y plus 4 is 2. So what is y is equal to 2 minus 4 यानी minus 2. Question was to find x and y का value. Okay. Similar way second sum x plus 1 by 3 y by 3 minus 1. Question is again to find x and y. So tell me, ordered pair. Be quick. Yes, please. What is the ordered pair? x plus 1 upon 3 is equal to 1 upon 2. X plus 1 by 3 is 1 by 2 and y by 3. Y by 3 minus 1 is 3 by 2. This is 1 by 3. LCM is 6. 3 minus 2 is 1. Y by 3 is 3 by 2 plus 1. 2 cross होएगा. 2 plus 3 यानी 5 by 2. So y will become 15 by 2. Okay, that's your answer. Next question. ये बहुत सिंपल टॉपिक है. A का वैल्यू देखिए रख. A का सेट, A set is known as A, B, C, and B set is known as X and Y. Question is to do set multiplication. Now this what we are learning is called as set multiplication. Now this is interesting. In set multiplication, we have to look at the order over here. A into B. Okay. So now A into B लिखा है ना, तो A का फर्स्ट एलिमेंट लोगे और उसका B के साथ में ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना. That is, I want to find a set. This is called set multiplication. I want to find a set of this set multiplication. The process goes, take the first element. A मेरा first set है, उसका first element लेना, compare it with both the elements of B, यानी A comma X, A comma Y. These are the first two elements. अब A का second element लो. What is that? B. उसका X और Y के साथ relation find out करो. क्या आएगा? BX B comma X. B comma Y. Same way C का find out करो. क्या आएगा? C comma X. C comma Y. That's your answer. A cross B. Clear with this? अब next question उधर क्या पूछा हुआ है? Find out B cross A. So I think now you can answer it. B cross A. पहला कौन सा है? B है. So tell me, B cross A का आंसर क्या आएगा? X comma A. X comma B. X comma A becomes a first element. Next. X comma B. X comma B. X comma B. X comma C. Don't say that they are equal. They are not equal because इसका भले ये AX है और ये XA है. They are not equal. Why not? Because ये पहले A बाद में X है, ये पहले X है बाद में A है. Next. Y comma A. Y comma A. Y comma B. Y comma C. Okay. Now this is interesting. A cross A. Now how will I find A cross A? A का ही first element दूसरे A set के साथ arrange करो. Tell me. A comma B. A comma A. A comma B. Elements are not repeated within the set. वो true है, पर ये पूरा मिला के मेरा एक एलिमेंट है. एलिमेंट के अंदर क्या होता है वो लेना देना नहीं है. Elements are not repeated within the set. Okay, so this is A comma A. Now next one. A comma B. A का first element सबके साथ आएगा, यानी A comma B. A comma C. वापस एक A by A नहीं आएगा. That is called as elements are not repeated. Clear? ये नहीं आ सकता. पर एलिमेंट के अंदर नंबर रिपीट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 11
में 1 और 1 रिपीट हो रहा है, बट ये 11 itself is my 1 element. फर्क समझ में आया? ओके, अब A का सेकेंड एलिमेंट लो B. Now find the relation with all the terms. B, A, B, B, C, B, C. Okay, now C का रिलेशन ले लो. C, C, A, C, C, B, C, C. Clear with this? वैसे B into B find out करना है, that you can manage. Now do remember, अपने को ये verify करना है, पर एक बार verify हो गया ना, ये as a formula भी learn करना, ये MCQs में काम आएगा. A cross B intersection C, set multiplication, matrix में set multiplication है, set और ये set है, set multiplication में if there is A outside, can it go inside? Can it become A cross B? Can it become A cross A? I need to verify that. एक बार verify हो गया, that remember that as a formula. Okay, let's pick up. Now to get this, सबसे पहले B intersection C find out करो. So what is B intersection C? 5 and 6. 5, 6. Okay. Now let us find A cross B intersection C. Yes. A का first element. What is the first element of A? 1. उसका B intersection C के साथ set find out करो. 1, 1 5. 5, 6. So A का first element हो गया. अब A का second element लेना. 2, 5. 5, 2, 6. 6. Next. 3, 3 5. 5. 5, 3, 6. 3, 6. 4, 5, 4, 6. 4, 6. Okay. So ये हो गया LHS. अब ये पार्ट तो हो गया, अब ये वाला पार्ट ढूंढना है. उसके लिए पहले इसको ढूंढना पड़ेगा. यानी फर्स्ट आई नीड टू फाइंड A क्रॉस B. टेल मी A क्रॉस B. 1, 4. 1, 1 4, 4 1, 5, 1 5 1, 6. 1 6. Same way 2, 2 का 4. relation 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 3, 4. 4, 3, 5, 3, 6. 4 4 4, 4 5. 5, 4, 6. Okay. Now next one A क्रॉस B हो गया. अभी A क्रॉस C. 1, 5. 1, 5, 1, 6. वैसे ही 2, 5, 2, 6. 3, 3, 5, 6. 3, 6. 4, 5, 4, 6. ओके. अब इसका और इसका इंटरसेक्शन ढूंढना है. So मेरे को A क्रॉस B, what I am finding is RHS. A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C ढूंढना है. ठीक है. So look at all the elements and tell me इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, 5. 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 6, 4, 5 and 4, 6. 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 6. 3, 6, 4, 5. 4, 5, 4, 6. यहाँ तक क्लियर? नाउ चेक ये LHS और ये RHS इक्वल है क्या? Yes, sir. So therefore A cross B intersection C is A cross B intersection A cross C. Remember verify में ना wrong आ सकता है. Show that होता तो equal ही होता, वो याद रखना. ठीक है. सिमिलर में सेकेंड वाले के लिए क्या करना है? चलो बताओ इसके लिए स्टेप क्या आएगा? B union C. LHS में पहले क्या करोगे? B union C. यस, पहले B यूनियन C, फिर क्या करना है? A से मल्टीप्लाई A cross into B. फिर बाद में A क्रॉस B
फिर यूनियन A क्रॉस C. I think that you can. Well, this is quite simple. We have a ordered pair. Now उसका सेट फाइंड आउट करना है, उसको एक्सप्रेस करना है. Needs to remember ये such that. This is called such that. It is a set builder form. This is my element. My element has values x and y. ठीक है? Such that x square plus y square is 100. So this is an equation. We need to find different values of x and y. That becomes my element such that x square plus y square is 100. तो मेरे को ये equation को solve करने का है जहाँ पे x और y, this is not an equation, this is a formula, जहाँ पे x and y itself is whole number. So let's start with the first value of whole number x. Yes, please. 0. x का पहला whole number ले लो 0. अगर मैंने ये 0 स्क्वायर लिया तो y का वैल्यू क्या आता है? 100. x 0 लिया तो y का वैल्यू क्या आता है? 10. 10 आता है. ठीक है, माइनस नहीं ले सकते बिकॉज होल नंबर लिखा हुआ है. चलो नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 1. मैंने 1 स्क्वायर लिया तो 100 माइनस 1 बिकम्स 99. 99 का स्क्वायर रूट नहीं होता है. मैंने x का पहले वैल्यू 0 लिया, 0. 100 माइनस 0 इज 100. y का वैल्यू 10 आया. नेक्स्ट x का वैल्यू 2 लो, 2 स्क्वायर यानी 4. 100 माइनस 4 बिकम्स 96. 96 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? ये y मेरा होल नंबर है. ठीक है, तो स्क्वायर रूट इरैशनल आंसर नहीं चलेगा, रैशनल होना चाहिए. नेक्स्ट x का वैल्यू 3 लेते. 3 स्क्वायर यानी 9. 100 माइनस 9 यानी 91 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं. लेट्स टेक द नेक्स्ट वैल्यू 4. 4 स्क्वायर यानी 16. 100 माइनस 16 यानी 100 माइनस 16 यानी 84 का स्क्वायर रूट नहीं है. नेक्स्ट लेट्स टेक द वैल्यू 5. 5 यानी 5 का स्क्वायर बिकम्स 5 का स्क्वायर इज 25. 25. 100 minus 25 is 75 का स्क्वायर रूट नहीं है. 6 का स्क्वायर है 36. 100 minus 36 becomes, what is 100 minus 36? Okay, so if I take 6 square is 36. 100 minus 36 becomes 64 का स्क्वायर रूट है. यानी अगर मैंने 6 लिया तो अगर x का वैल्यू मैंने 6 लिया है तो y का वैल्यू 64 का स्क्वायर रूट बिकम्स 8. चलो नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं. x का नेक्स्ट वैल्यू 7. 7 स्क्वायर इज 49. 100 माइनस 49 बिकम्स 51. नहीं पॉसिबल. नेक्स्ट वैल्यू 8 लेते हैं. 8 स्क्वायर इज 64. 64 100 माइनस 64 बिकम्स 36. तो अगर x का वैल्यू 8 लिया तो y का वैल्यू 6 आया. 6. नेक्स्ट x का वैल्यू 9 लेते हैं. 9 स्क्वायर 81. 100 माइनस 81 इज 9 का स्क्वायर रूट नहीं है. सॉरी 9 लिया था ना, सॉरी फॉर दैट. 9 स्क्वायर इज 81. 100 माइनस 81 19 आता है. 19 का स्क्वायर रूट नहीं आता. नेक्स्ट वैल्यू 10 लेते हैं. बताओ क्या आंसर आएगा? X is 10, y is 0. 100 minus 100 is 0 यानी y 0 आया. So now write the ordered pair over here. 0 10 6, 8, 8, 6, 8, 6. 10, 0. Null set समझते हो ना? There is no element. empty. Okay, let's start. Now A and B becomes my element. So let's start with the ordered pair. First pair लेते हैं. When A is equal to 6. First ordered pair. A का वैल्यू B के साथ चेंज करो. मैंने A का वैल्यू 6 लिया है. B का वैल्यू क्या ले रहा हूं? 1. समझा? A belongs to A set, B belongs to B set. Find मेरे को A minus B करना है. तो बताओ A minus B का वैल्यू क्या आ रहा है? 6 minus 1. 6 minus 1 and 5. 5. Is an even number. Is an even number. Even आया क्या? No. नहीं. Odd है. Okay. अब दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लो. A का वैल्यू सेम ही रहेगा. अब चेंज कौन हो गया? B.
नहीं याद है ना तुमको लास्ट टाइम अभी अपने ऑर्डर पेयर किया था, ए का वैल्यू सेम रखते, बी का चेंज करते जाते हैं। 3 बी का वैल्यू 3 लिया, a माइनस बी, 3 3 6 माइनस 3 इज 3 odd ऑर्डर। वैसे भी मेरे को आंसर नल चाहिए, शो दैट है, वेरीफाई नहीं है, शो दैट है। शो दैट का मतलब वो नल ही आने वाला है, यानी सारे वैल्यूज क्या आने चाहिए, odd और इवन आएगा तो वो सेट के अंदर आ गया, यानी नल नहीं बना। नल सेट के लिए क्या चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी सिंगल एलिमेंट इनसाइड इट। थर्ड, ए का वैल्यू 6 ही रहेगा, 6 बी का वैल्यू 5, 5 तो a माइनस बी, 6 माइनस 5 बिकम्स 1। 1 odd और अब क्या हो गया, a का वैल्यू चेंज हो गया 8 8, वापस b का फर्स्ट वैल्यू 1, 1 a 1 माइनस b, 8 माइनस 1 is 7, और you can do it, all are odd, it's all a minus b is an odd number। जरा माइक दूर रखो और म्यूट करो, लेंड्रॉय तेरे यहाँ से आवाज आ रहा है। is an odd number, therefore R1 has a null relation। Clear with this? समझ में आ गया पार्ट? Yes, sir. yes अब इसी में और एक शो दैट है, R2 वापस a कॉमा b है, such that once again a belongs to a, b belongs to b, this time a plus b करना है, and इस बार is an odd number, और मुझे प्रूव करना है is a universal relation। यूनिवर्सल मतलब सारे एलिमेंट्स आते हैं यार, ठीक है। लेट्स सी whether it is a universal relation or not। when a is equal to, पहला वैल्यू a का 6, b का फर्स्ट वैल्यू 1, अपने को इस बार करने का क्या है, a plus b 6 प्लस 1 यानी 7, 7 इस बार क्या आया, ऑड आया, और इस बार मेरे को ऑड ही चाहिए। नोटिस करो लास्ट टाइम मेरे को इवन चाहिए था, इसलिए नल सेट आया, क्योंकि कोई इवन आया ही नहीं आंसर, इस बार ऑड ही चाहिए, और सारे के सारे आंसर ऑड ही आने वाले। 9 a is equal to 6, b is equal to next value 3, 3 a plus b becomes 9, which is odd। I suppose you can understand doing all this, ये स्टेप सारे समझ में आ जाएंगे। Tell me, Yes, सब sir. वैल्यूज एक्सेप्ट होएगा कि कोई एक वैल्यू भी है जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, Sub accept. सब सब एक्सेप्ट एक्सेप्ट होगा होएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, therefore R2 is an universal universal relation because all values are going to be there within this set। ये R2 is a set, उस set में all values are going to be accepted। Now in the next question, eighth sum, write the relation in the rooster form। इसको rooster form में arrange करना है। After we arrange this in rooster form, state its domain and range। अब इसका domain और range find out करना है। I'll just explain you domain and range क्या होता है। जो first value है ना, that is called as a domain, and the second value आता है ना, that is called as a range। So this is called as a domain and this is called as a range। Okay, the set of first elements is called domain, set of second elements is called as a range। that is, हमने लास्ट टाइम ये किया हुआ है डोमेन एंड रेंज का। यहाँ पे जो वैल्यूज है दैट इज कॉल्ड डोमेन, इधर जो वैल्यूज है दैट इज कॉल्ड एज रेंज। इनके रिलेशंस हम लोग मार्क करते हैं, रिमेंबर ऑन टू इनटू हमने लास्ट टाइम मार्क किया हुआ है। yes ओके, ए का वैल्यूज is going to be my domain। अपने को रूस्टर फॉर्म में लिखना है। what is a is a prime number, but that prime number is less than 15। by the way, prime number starts from 2 2 prime numbers बताओ। 3 3 5 5 7 11, 11 11 11, 9 नहीं आएगा, मालूम है ना, क्या याद है ना। 11 11 13 13, नहीं 17 less than क्यों नहीं आया, लेस देन 15 बोला, ठीक है। 15. ओके,
सो दिस इज माय ए सेट, मैं सिर्फ ए एलिमेंट लिख रहा हूं। अब ए स्क्वायर ढूंढते हैं, ए हो गया, ए स्क्वायर ढूंढते हैं। 4 4 9 25 49 43 121 21 169 169 नाउ सबसे पहले इसको रूस्टर फॉर्म में अरेंज करना है। सो रूस्टर फॉर्म में a and a square becomes my element, this becomes my element, यानी एलिमेंट क्या है 2,4 अब समझ में आया क्या करना है। yes sir yes sir 2 4 3,9 5,25 7,49 11,121 13,169 So what you have noticed is these are not difficult sums. The only thing that this explains you how to play with this sums. हम लोग खेल रहे हैं sums के साथ, ठीक है? Okay, so these are quite simple, but you should understand what is the question. Now the question is to find the domain. Domain of R1. R1 का डोमेन करें। डोमेन यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, एलिमेंट के अंदर जो फर्स्ट नंबर है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ डोमेन। एलिमेंट के अंदर जो सेकंड नंबर है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेंज। सो ऑल दीज फर्स्ट एलिमेंट के अंदर का फर्स्ट नंबर इज माय डोमेन। सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द डोमेन्स? 2 3 5 3 5 7 7 11 13 13 Same way, tell me what is the range of R1? 4 एलिमेंट के अंदर का 9 25 सेकंड नंबर इज कॉल्ड रेंज। 4 4 9 9 25 25 15 49 121 121 169 So sums are quite simple. The only thing is तुमको ये समझ में आना चाहिए क्या पूछा है ना। अब इसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। सेकंड सम इसका इजी है। सेकंड सम में रिलेशन दिया है a और 1/8, वो तो काफी इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। उसका थर्ड वाला ले रहे हैं, R3 x, y, y is equal to 3x। अब ये इक्वेशन आ गया, y belongs to 3 6 9 12 and x belongs to 1 2 3। This is the setup, I think. Now notice करना, सेट के अंदर सेट है, सेट के अंदर सेट है, so that is a possibility. So you don't have to be confused with that. Now we have to find. Now this x and y becomes my element. ठीक है, x and y becomes my element over here. X का value lies between 1 2 3 and y का values lies between 3 6 9 12. Okay, now let us take the first value of x. x का पहला वैल्यू लेते हैं, रिलेशन दिया है y is equal to, see this is my equation, पहला वैल्यू x का क्या लेंगे 1। 1 ओके, अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया, y का वैल्यू क्या आता है 3 3 into 1 यानी 3, और y 3 अवेलेबल है। समझ में आया? yes sir yes sir यानी my Yes, first sir. element is 1 comma 3, x comma y। क्लियर? yes sir yes sir सी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, उन्होंने कंडीशन सिर्फ a का दिया था, a स्क्वायर का नहीं दिया था, तो a स्क्वायर सब के सब एक्सेप्ट हो गए। सो दीज ऑल बिकम्स माय वैल्यूज। सिर्फ ये जो अपन ये जो इतना कर रहे हैं ना, ये एग्जाम में क्लिक होना चाहिए, हमको किस फॉर्मेट में करना है, इस तरह करना है कि इस तरह करना है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। बाकी जस्ट वी हैव टू प्ले विद द सम्स। नाउ नेक्स्ट, x का वैल्यू 2, व्हाट इज y वैल्यू 2 3s are 6 सॉरी 2 3s are 6, ठीक है। 6 वैल्यू है क्या? यस इट इज देयर, क्योंकि है इसलिए लिखा। 2,6 नेक्स्ट, x का वैल्यू 3, 3 y का वैल्यू 9 3 into 3 9 9 है, 3,9 नेक्स्ट x का वैल्यू when 4 x is equal to 4 x का वैल्यू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। नहीं, x का वैल्यू 4 कहां से आएगा, 1 2 3 इतना ही वैल्यूज है। मैंने 1 लिया सॉल्व किया, 2 लिया सॉल्व किया, 3 लिया सॉल्व किया,
आगे x की वैल्यूज ही नहीं है तो खत्म हो गया ये, इसके आगे होगा ही नहीं। सो टेल मी R3 सेट इन रूस्टर फॉर्म क्या आ रहा है? 1, 3. 1 3 2 6 2 6 3 9 3 9 ओके। अब उसका डोमेन बताओ और रेंज बताओ। domain 1, 2, 3. डोमेन 1 2 3 Range 3, 6, 9. range is Range. 3 6 9 3 6 9 चेक करना, पूरे y के वैल्यू में से सिर्फ 3 6 9 एक्सेप्ट हो गया, 12 आया ही नहीं। नोटिस द चेंज हियर, ये सब में इक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी। सो दिस इनइक्वालिटी हैज टू बी सेटिस्फाइड। टू सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी x का वैल्यूज दे के रखा है, y का वैल्यूज दे के रखा है। x एंड y का वैल्यूज इनके अलावा कोई नहीं ले सकते। मींस x का वैल्यू में 3 नहीं ले सकता, y का वैल्यू में 8 नहीं ले सकता। So I have to satisfy this inequality considering these values only. Let us put up different values of x. So first value, when x X is x 1. का कौन सा पहला वैल्यू पुट अप करोगे? 1. 1, वेरी गुड। ओके, अगर मैंने 1 पुट अप किया तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? सॉरी 2 y का वैल्यू नहीं, 2 x प्लस 1 क्या आ रहा है? 2 x प्लस 1 आ रहा है, 1 प्लस 1 यानी 2। ठीक है, अब मैंने y का वैल्यू 2 लिया, इस y का वैल्यू x प्लस 1 से ज्यादा है कि नहीं है? नहीं है। y का वैल्यू शुड बी मोर देन x प्लस। मैंने कहा ना अभी हमने थोड़ा डिफिकल्ट, सब सिंपल है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लिक होता है ना, वही पार्ट डिफिकल्ट है। मैंने x का पहला वैल्यू 1 लिया, ऐड किया 2 आया, मैंने y का पहला वैल्यू लिया 2। टेल मी, क्या y का पहला वैल्यू x प्लस 1 से ज्यादा है क्या नहीं? नहीं है। नहीं है। What will I say? Y is not greater than x plus 1. यानी ये x और y का वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसी में x का वैल्यू फिर से 1 लिया, 2. x प्लस 1 2 है, अब मैंने y का दूसरा वैल्यू लिया 4. 4 क्या है y का वैल्यू x प्लस 1 से ज्यादा है? हाँ। yes y is more than x plus 1, यानी ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है। सो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 एक्सेप्टेबल है। क्लियर? म्यूट करो जरा, किसी के बैकग्राउंड में आवाज है। नेक्स्ट x का वैल्यू वापस 1 लिया, अब मैं 2 को चेक किया, 4 को चेक किया, अब 6 को चेक करना है। y का वैल्यू 6 है, क्या 6 वैल्यू 2 से ज्यादा है? yes sir 1 So comma even this value is acceptable, that is 1, 1,6। नेक्स्ट, अब x का वैल्यू 1 हो गया, अब x का वैल्यू 2 चेक करेंगे। क्यों 1 हो गया? क्योंकि 2 4 6 तीनों चेक हो गया, उसके आगे नंबर ही नहीं है। अब x का वैल्यू 2 लेंगे, सो x प्लस 1 2 प्लस 1 बिकम्स 3। वापस y का वैल्यू से स्टार्ट करो, y इज इक्वल टू 2। क्या y का वैल्यू 3 से ज्यादा है? 9 नो। no यानी एक्सेप्ट नहीं होगा। 4 x is equal to 2, 2 plus 1 becomes 3। अब y का नेक्स्ट वैल्यू ले लो 4, 4 2 हो गया, Yes. 4 ले लिया। हाँ क्या ये 4 का वैल्यू 3 से ज्यादा है? yes So that is acceptable, यानी 2,4 is acceptable। Next, x is equal to 2 ही लेंगे, 2 plus 1 is 3, 6 y का वैल्यू 6, 6. yes 6 is more than 3, yes sir Y is greater. y is more than x plus 1, so answer is 2 comma 6 2,6 okay. So after we check all these relations, R4 लिखते हैं। R4 is 1,4, ये एक्सेप्ट हुआ, ये एक्सेप्ट हुआ। 1, 1,6, 1,6 2, 2,4 3,6। 2, डोमेन बताओ 2,6 क्या हुआ? 2, 6. इधर
सॉरी यस डोमेन बताओ R4 का 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 नहीं 1 1 नहीं आएगा ना, सेट के अंदर एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, तो दो 1, बार है, उसमें से एक ही बार आएगा 1 और ये 2 आएगा। 1 2 अच्छा रेंज ऑफ बताओ 4 6 4 6 यानी सिर्फ कौन आएगा 4 4 and 6 एलिमेंट्स आर नेवर रिपीटेड इन अ सेट। ये हम सेट में लिख रहे हैं इसलिए एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। Now here look at this question, everyone able to see? yes sir Yes, sir. Yes, sir. The next question is sum a comma b, that is my element, b का value is a plus 2, this is an equation. To solve this equation a का value is known as integers, z symbol is used for integers between 0 and 5, because integers are written between 0 and 5, तो first integer कौन सा लोगे? yes half इंटीजर का वैल्यू 0 और 5 के बीच में फर्स्ट इंटीजर कौन सा लेने का है 1, 1 ठीक है नंबर्स ले रहे हैं 1 2 3 4। अगर मैंने पहला वैल्यू a का 1 लिया तो b का वैल्यू बताओ 3 3. सेकंड वैल्यू a का 2 लिया तो b का वैल्यू 4 b का कंडीशन दिया नहीं है तो b कोई भी वैल्यू रहेगा चलेगा, एक्सेप्टेबल है। 2 plus 2 यानी 4, a का वैल्यू 3 लिया 5 plus 2 यानी 5, 5 a का वैल्यू 4 लिया 4 plus 2 यानी 6 6 1 3 2 4 3 3 5 5 4 इजी। इसके बाद डोमेन और रेंज मालूम है, फर्स्ट वैल्यू इज डोमेन, सेकंड वैल्यू इज रेंज।